بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کورونا کے مالی اثرات خدشات سے کم ہوئے۔ سعودی کی غیر ملکی اہلیہ سعودائزیشن کے دائرے میں نہیں۔ سعودی اور پاکستانی خبر رساں ایجنسیوں میں تعاون کا جائزہ۔ مملکت میں 78 دن بعد سخت سردی کی پیش گوئی۔ ریاض میں 45 روزہ فالکن نیلامی میلہ۔ غیر ملکی سگریٹ اور تمباکو درآمد کر سکتے ہیں؟ سوال۔ کورونا کے 418 نئے کیسز، 29 اموات۔ جعلی رعایتی پیشکش روکنے کے لیے وزارت تجارت کی ایپ۔ زائرین کے استقبال سے پہلے فرضی عمرے کا اہتمام۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر ریاض اور مکہ میں کئی دکانیں بند۔ عمرہ زائرین کے لیے میقاتوں پر انتظامات مکمل۔ کورونا کے مالی اثرات خدشات سے کم ہوئے۔ سعودی وزارت خزانہ نے سعودی بجٹ برائے 2021 کا تخمینہ جاری کیا ہے۔ اخراجات 990 ارب اور آمدنی 846 ارب ریال متوقع ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت خزانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ بجٹ 2020 کے اخراجات 1068 ارب ریال ہوں گے۔ سعودی عرب کو 2020 کے مقابلے میں 2021 کے دوران آمدنی 10% زیادہ ہوگی۔ بجٹ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ قومی آمدنی میں سالانہ 6.4% اوسط اضافہ ہوگا۔ 2023 میں آمدنی 928 ارب ریال کے لگ بھگ ہوگی۔ بجٹ سے متعلق ابتدائی بیان میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں قومی بجٹ میں خسارہ مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے 5% تک کم ہو جائے گا، جس کی بنیاد پر 2021 میں بجٹ خسارہ آدھا ہو جائے گا۔ آئندہ برسوں سے متعلق توقعات میں بتایا گیا ہے کہ 2022 کا قومی بجٹ 955 ارب اور 2023 کا 941 ارب ریال ہوگا۔ قومی قرضے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2021 میں سعودی عرب کا قومی قرضہ قومی پیداوار کے حوالے سے 33% تک پہنچ جائے گا۔ 2021 کے قومی بجٹ کے بارے میں امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ 2020 میں 3.8% کساد بازاری ہوگی اور 2021 میں شرح نمو 3.2% ہوگی۔ سال رواں 2020 کے حوالے سے قومی آمدنی کا تخمینہ 770 ارب ریال اور اخراجات کا اندازہ 1068 ارب ریال لگایا گیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سال رواں کے بجٹ میں قومی پیداوار کے حوالے سے خسارہ 12% ہوگا۔ حقیقی قومی مجموعی پیداوار میں 2020 کے دوران 3.8% کمی ہوگی۔ اس سلسلے میں سال رواں کی پہلی ششماہی کے دوران اقتصادی گراف کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ 2020 کے دوران افراط زر 3.7% کے لگ بھگ ہوگا۔ ماہر اقتصاد ترکی بدعق نے العربیہ نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سال رواں کی دوسری سہمائی کے دوران کورونا وبا کے مالی اثرات کو 2020 بجٹ تیار کرتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا گیا تھا۔ متوقع اخراجات 1020 ارب ریال تھے۔ حقیقی اخراجات بڑھ کر 1068 ارب ریال ہو گئے۔ اخراجات وبا کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر اور ریلیف پروگرام کی وجہ سے زیادہ ہوئے ہیں۔ 2020 میں آمدنی 2019 کے مقابلے میں 17% کم ہوئی۔
2020 की आमदनी 770 अरब रियाल रह गई। अलबत्ता वबा के माली असरात खदशात से कम हुए। ऐसा अखराजात में कफ़ायत, शायरी और समाजी कफालत प्रोग्रामों की आनत की वजह से मुमकिन हो सका। 2018 और 2019 के दौरान बजट खसारे में कमी रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से अखराजात में कफ़ायत, शायरी और तवील मुद्दती अहदाफ के प्रोग्राम थे। अलबत्ता वबा ने बजट 2020 पर मनफी असरात डाले। खदशा है कि बजट खसारा 2020 तक 12% तक पहुंच जाएगा, जबकि 2019 में बजट खसारा 4.5% था। इस बात का इम्कान है कि मजमूई कौमी कर्जा 2020 के आखिर तक मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से 34.4% तक पहुंच जाए। साल रवा के आखिर में सरकारी असासे मंजूर शुदा बजट के मुताबिक 346 अरब रियाल तक रहने की तवक्का है, जो मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से 14% है। सऊदी की गैर मुल्की अहलिया सऊदाइजेशन के दायरे में नहीं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने मकामी शहरी की गैर मुल्की अहलिया पर सऊदाइजेशन के अहकाम के हवाले से बयान जारी किया है। वजारत ने कहा है कि सऊदी की गैर मुल्की अहलिया को सऊदाइजेशन के दायरे में शुमार नहीं की जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरी ने दरियाफ्त किया था कि क्या सऊदी शहरी की अहलिया और सऊदी बच्चों की मां को सऊदाइजेशन में रखा जाएगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने ट्विटर पर उसका जवाब देते हुए कहा कि सऊदी की गैर मुल्की मां को ऐसे किसी भी पेशे पर मुलाजमत की इजाज़त नहीं होगी जो पेशे सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। अलबत्ता सऊदी की गैर मुल्की मां को सऊदाइजेशन के दायरे में शुमार किया जाएगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मजीद बताया कि सऊदी शहरी की गैर मुल्की अहलिया को सऊदियों के लिए मुख्तस किसी पेशे पर काम की इजाज़त होगी और ना ही सऊदाइजेशन के दायरे में उसे शुमार किया जाएगा। सऊदी और पाकिस्तानी खबरसां एजेंसियों में ताउन का जायजा। रियाद में मतईन पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने बुध को सऊदी खबरसां इदारे SPA का दौरा किया और अदारे के सरबराह अब्दुल्ला अल हुसैन से मुलाकात की है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सफ़ीर पाकिस्तान अब्दुल्ला अल हुसैन से दोस्ताना माहौल में SPA और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी के दरमियान खबरों में ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। SPA के सरबराह ने इस मौका पर सफ़ीर पाकिस्तान को SPA के कैंप्स, जदीद मीडिया फोटोग्राफी, TV प्रोडक्शन, मीडिया सेंटर का दौरा और मदीरान से मुतारफ़ कराया। उन्हें SPA के तरीक़ाकार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया गया। अब्दुल्ला अल हुसैन ने सफ़ीर पाकिस्तान को बताया कि SPA अरबी के अलावा 5 ज़बानों में ई-गेट पर खबरें दे रहे हैं। अलावाजी सोशल मीडिया पर भी खबरें जारी कर रही है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अबलागी सनत के हवाले से SPA के वसाइल और तरबियत याफ्ता अफराद की मौजूदगी को सराहा। ममलकत में 78 दिन बाद सख्त सर्दी की पेशन गोई। सऊदी अरब में खलाई व फल्कियाती अलूम की अरब तंजीम के रुकन व माहिर मौसमियात खालिद अल ज़ाक ने कहा है कि आज से ठीक 78 दिन बाद सऊदी अरब में सख्त सर्दी शुरू होगी। साल के बेहतरीन अय्याम शुरू हो जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक अल ज़ाक ने कहा है कि जमादिल अव्वल की आमद पर सर्दी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रजब और शाबान में बहार का मौसम, जबकि रमज़ान में मामूली गर्मी होगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक बुध को सऊदी अरब के 4 इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश हो रही है। जजान की अबू अरीश, अल दरब, अल आरदा, बेश, सामता, फीफा और हरूब कमिश्नरियों में रात 8 बजे तक बारिश होती रहेगी। बाद मुकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश हो रही है। असीर रीजन में कहीं दरमियाने दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
10 कमिश्नरियों में रात 8 बजे तक बारिश होती रहेगी। बाहा का मंजरनामा भी ऐसा ही है, जहां 8 कमिश्नरियों में बारिश हो रही है। मदीना मुनव्वरा की 4 कमिश्नरियों में दोपहर 12 बजे बारिश शुरू हुई थी और रात 8 बजे तक इसका सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। रियाद में 45 रोजा फाल्कन नीलामी मेला। सऊदी फाल्कन क्लब ने कहा है कि 45 रोजा फाल्कन नीलामी मेला शनिचर 3 अक्टूबर को शमाली रियाद के शाह अब्दुल अजीज मेलागाह में शुरू होगा। सऊदी फाल्कन क्लब ममलकत में फाल्कन मार्केट को जदीद खतूत पर अस्तवार कर रही है। सऊदी शहरियों में फाल्कन से शिकार का शौक उन्हें आबाओ अजदाद से वर्षे में मिला है और ये इनकी आमदनी का भी वसीला है। फाल्कन को पालने और इनका कारोबार करने वालों का कहना है कि ममलकत में फाल्कन की नीलामी की मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, हालांकि फाल्कन के जरिए शिकार का शौक बहुत ज्यादा है और उसे अवाम में मकबूलियत हासिल है। उन्होंने कहा कि सऊदी फाल्कन क्लब 2017 में शाही फरमान पर कायम किया गया है। क्लब के क़याम से कबल ममलकत के शमाली और मगरबी इलाकों में बाज की चंद नुमाइशें लगती थीं। यह सारा काम गैर रस्मी तरीके से अंजाम पाता था। अब मंजरनामा बदलने लगा है। सऊदी फाल्कन क्लब ने पहले नीलामी मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसमें सऊदी अरब के तमाम इलाकों से शायकीन शिरकत करेंगे। यह नीलामी किंग अब्दुल अजीज फाल्कन मेले से कबल होगी, जो 28 नवंबर को होगा। यह दुनिया भर में अपनी नौइयत का सबसे बड़ा होगा। उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। सऊदी फाल्कन क्लब ने बताया कि नीलामी रात को 8 बजे से आधी रात तक होगी। इब्तदाई 10 रोज के दौरान हर 3 दिन में एक बार होगी, फिर 14 अक्टूबर से एक दिन छोड़कर होगी। गैर मुल्की सिगरेट और तंबाकू दरामद कर सकते हैं। सऊदी महकमा कस्टम ने आम अफराद के लिए तंबाकू मसनूआत की दरामद का तरीकाकार जारी किया है। सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एयर कार्गो, पोस्ट ऑफिस या एक्सप्रेस मेल सर्विस के जरिए तंबाकू मसनूआत दरामद कर सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा कस्टम ने आम अफराद को 2400 सिगरेट दरामद करने की इजाजत दी है। 2 किलोग्राम शीशा तंबाकू भी दरामद कर सकेंगे। सिगरेट तंबाकू की मज़कूरा मुद्दत 3 माह के लिए होगी। यही ज़ाब्ता मुसाफिरों पर भी लागू होगा। वो 2400 सिगरेट और 2 किलोग्राम शीशा तंबाकू अपने हमरा ला सकेंगे। महकमा कस्टम ने बयान में कहा है कि अगर किसी शख्स ने मकदार से ज्यादा तंबाकू मसनूआत दरामद की तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। दरामद करने वाले शहरी या मुकीम गैर मुल्की या मुसाफिर को हुक्म दिया जाएगा कि वह मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तंबाकू मसनूआत वापस करे। पाबंदी न करने की सूरत में जब्त शुदा तंबाकू मसनूआत कस्टम गोदाम के हवाले कर दी जाएगी और फिर तंबाकू मसनूआत बरामदी फीस पर फरोख्त कर दी जाएंगी। ऐसी सूरत में दरामद कुंदा या मुसाफिर को इस हवाले से किसी मुतालबे का कोई हक नहीं होगा। तंबाकू मसनूआत पर कस्टम फीस 100% होगी। अलावाजी 100% खसूसी टैक्स और 15% वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा। ताहम मुसाफिरों से यह फीस ऐसी सूरत में नहीं ली जाएगी जबकि इनके पास 200 से ज्यादा सिगरेट और तंबाकू 500 ग्राम से ज्यादा ना हो। महकमा कस्टम का कहना है कि ये ज़ाब्ते 18 बरस से कम उम्र के मुसाफिरों, बड़ी सरहदी चौकियों से आने वाले मुसाफिरों, आम दरामद कुंदगान पर लागू नहीं होंगे। अलावाजी ये ज़ाब्ते गैर कानूनी तरीके से मुमलकत में सिगरेट और तंबाकू मसनूआत लाने की कोशिश के दौरान पकड़े जाने पर भी नहीं लागू होंगे। कोरोना के 418 नए केसेस, 29 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में गुज़िश्ता रोज इजाफे के बाद बुध को नुमाया कमी हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक बुध 30 सितंबर को गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 418 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,34,605 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 612 अफराद सेहतियाब हुए हैं।
अब तक 3,19,154 अफराद इस मर्ज से शफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोरोना से 29 अफराद हलाक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 4,768 हो चुकी है। ममलकत में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 10,683 है, जिनमें से 993 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज्यादा तादाद जद्दा में रही, जहां 43 नए मरीज सामने आए हैं। मक्का में 31, रियाद 31, जम्बो 29, मदीना 23, बिलजर्शी 21, दमाम 21, खमीस मशीद 15, जजान 15, अबहा 12, अलमुबर्रस 11, अलखिफजी 10 और अल्लीस में 6 केसेस का पता चला है। अदाद शुमार के मुताबिक 21 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 12 शहरों में 2-2 और 11 शहरों में 3-3, जबकि 2 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि पिछले 1 माह से कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है। तर्जुमान का कहना था कि कोरोना के केसेस में कमी के हवाले से अब तक तमाम इशारे उम्मीद अफजा हैं। जाली रियायती पेशकश रोकने के लिए वज़ारत तिजारत की ऐप। सऊदी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है कि स्मार्टफोन्स पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक ऐप मार्केट में जाली और गैर कानूनी रायत की पेशकशों से ग्राहकों को महफूज रखने के लिए इंतहाई मुअस्सर साबित होगी। अरब न्यूज के मुताबिक तर्जुमान ने बताया है कि ये ऐप सार्फिन को ये भी चेक करने में मदद देगी कि आया अशिया की फरोख्त दुरुस्त और काबिल इस्तेमाल है। अगर गलत है तो सार्फिन बराह रास्त वजारत को खिलाफ वर्जियों की इतला दे सकते हैं। वजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा है कि रायती पेशकश करने वाली कंपनियों को इस तरीकाकार के लिए किसी लाइहा अमल के तहत चलने की जरूरत है। रायती नरख पर अशिया मार्केट में लाने के लिए लाइसेंस की दरख्वास्त देना होगी। इन खास मसनूआत का जिक्र करना होगा। इन अशिया की गबल और बाद में कीमतों की फहरिस्त फराहम करना होगी। गबल और बाद में कीमतों में कितने फीसद छूट दी जा रही है, इसको वाज़िया तौर पर दिखाना होगा। वजारत की जानिब से इस रायती ऐप में इन तजारती कंपनियों की फहरिस्त भी दी गई है जिनके पास रायती पेशकश का लाइसेंस मौजूद है। इस ऐप को स्मार्टफोन्स पर हासिल किया जा सकता है। काबिल इस्तेमाल अशिया और उन्हें मुहैया करने वाले मराकज़ को तलाश करने और रायती और शरावर और वक्त भी ऐप पर दस्तयाब होगा। इससे सार्फिन को गूगल मैप के जरिए रायती मरकज़ के मुकाम की तलाश में भी सहूलत हासिल होगी। वज़ारत तिजारत ने बताया कि ऐसी तमाम कंपनियों और मराकज़ से मुतालबा किया गया है कि वो खुसूसी और महदूद मुद्दत के लिए राय देने का लाइसेंस सार्फिन के लिए अपने इश्तहारात पर वाज़िया पर चिस्पा करें, जबकि ऑनलाइन स्टोर्स लाइसेंस को अपनी वेबसाइट पर वाज़िया तौर पर दिखाएं। वज़ारत के तर्जुमान ने बताया है कि ऐसी कंपनियां या ऑनलाइन कारोबार करने वाले ताजर डिस्काउंट लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसके बाद वो खुसूसी रायत के साथ कोई भी शय फरोख्त कर सकते हैं। सार्फिन के लिए ये रायत इनके कारोबार में तरक्की और साख मजबूत करती है। इस मौका पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद अल हम्द ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि वज़ारत तजारत को रायती कीमतों से कबल अशिया के नरखों का जायजा लेना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि रायत से कबल और बाद की कीमत और वाट के साथ साथ रायती फीसद के स्टिकर्स चिस्पा किए जाएं जो कीमत को वाज़िया तौर पर जाहिर करे। उन्होंने मजीद कहा है कि कुछ मराकज़ कीमतों में इजाफा करते हैं और फिर दावा करते हैं कि वो रायत की पेशकश कर रहे हैं। सार्फिन को इससे आगाह रहना चाहिए और अगर कोई आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है तो ये भी दुकानदार से पूछना चाहिए। सार्फिन को खरीदी गई हर चीज़ की रसीद का भी मुतालबा करना चाहिए।
کیونکہ رسید ہی واحد ثبوت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے رعایتی اشیاء خریدی ہیں۔ زائرین کے استقبال سے پہلے فرضی عمرے کا اہتمام۔ حرم مکی شریف انتظامیہ نے عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریوں کے ضمن میں فرضی عمرے کا اہتمام کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق زائرین کے استقبال، حرم میں داخلہ طواف اور سعی کے بعد محفوظ طریقے سے حرم سے نکلنے کی استعداد جاننے کے لیے تجربہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مسجد الحرام اتوار سے عمرہ زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا، جہاں آتمنا ایپ کے ذریعے وقت لینے کے شہری و غیر ملکی عمرہ ادا کریں گے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ زائرین حرم کی سلامتی کے لیے انتظامیہ نے عمرے کا فرضی تجربہ کر کے متعدد تیاریوں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تجربے کے دوران اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ عمرہ زائرین کا استقبال کیسے ہوگا، کس طرح وہ محفوظ طریقے سے مناسک ادا کریں گے، کن دروازوں سے داخل ہوں گے اور کن سے باہر جائیں گے۔ تجربے کے دوران اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ مناسک کی ادائیگی کے دوران کسی شخص میں کورونا کی علامت پائی جائے تو کیا کیا جائے گا۔ دوسری طرف حرم مکی شریف انتظامیہ نے کہا ہے کہ مطاف کا پورا علاقہ طواف کے لیے مخصوص ہوگا۔ مطاف میں بیٹھنے یا نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ علاقہ طواف کرنے والوں کے لیے ہر وقت خالی رہے گا۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ عمرہ زائرین اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے، نماز کے لیے مختصر جگہوں پر ہی نماز پڑھیں گے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مناسک کی ادائیگی کے بعد زائرین کو اپنے گروپ کے ساتھ حرم سے نکلنا ہوگا۔ ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر ریاض اور مکہ میں کئی دکانیں بند۔ ریاض اور مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کی متعدد خلاف ورزیوں پر کئی دکانیں اور تجارتی ادارے سربمہر کر دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کو المعاذر میونسپلٹی کے اہلکاروں نے علاقہ میں تفتیشی دورے کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پکڑی ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ بلدیہ کے ضابطوں کے علاوہ کورونا کے انسداد کی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر 35 دکانیں بند کر دی گئیں، جبکہ مالکان کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ رہائشیوں کی سلامتی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کی ہر وقت نگرانی جاری ہے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ المعابدہ بلدیہ نے 14 دکانیں بند کر دی ہیں، جبکہ مختلف قسم کے جرمانے بھی عائد کیے ہیں۔ مذکورہ دکانوں میں صفائی اور معیار کے فقدان کے علاوہ بلدیہ کے ضابطوں کی خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ شہر بھر میں تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ کورونا کے انسداد کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ ہر دکان کو لائسنس کے مطابق کام کرنے کی اجازت ہے، علاوہ سامان مخصوص جگہ پر رکھنا لازمی ہے۔ فٹ پاتھ پر سامان رکھنے پر جرمانہ ہوگا۔ عمرہ زائرین کے لیے میقاتوں پر انتظامات مکمل۔ سعودی وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ تمام میقاتوں پر عمرہ زائرین کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ عمرے کی تدریجی بحالی کا شاہی فیصلہ آتے ہی وزارت نے عمرے کے خواہش مند سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی اور آرام و راحت کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی ہیں۔ واضح رہے کہ عمرہ یا حج پر جانے والوں کو مخصوص مقامات سے احرام پہننا ہوتا ہے اور وہاں سے نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کو میقات کہا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں سے
आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए मिकातें अलग अलग हैं। हर मिकात पर मस्जिद, तहारत खाने, गुस्ल खाने बने हुए हैं। एहराम समेत उम्रे और हज के लिए दरकार जुमला अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें भी मौजूद हैं। सऊदी वजीर ने मजीद कहा कि वजारत इस्लामी अमूर ने उम्रा मौसम को मद्देनजर रखते हुए तमाम मसाजिद और मिकातों पर SOPs का एहतमाम किया है। हर मिकात पर आलम दीन तैनात होंगे जो उम्रा ज़ायरीन को दीनी आगाही फराहम करेंगे, जबकि ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात के मयार और खिदमात का सिलसिला बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। याद रहे कि उम्रा और ज़ियारत मरहलावार बहाल करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में, जिसका आगाज अतवार 4 अक्टूबर 2020 से होगा, सिर्फ सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की इजाज़त होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ जो आप लोगों ने वीडियो में सारी सुनी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिल वक्त मिलता रहे। कमेंट करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों तक भी वीडियो पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।